Good morning, student. Today we will learn the next point, negation of a compound statement. So these are the compound statements. So first, negation of conjunction. See, negation of P and Q which is equivalent to negation P और Q. तो यहाँ पे and का और बन गया और P and Q जो ब्रैकेट में दोनों का सेपरेट negation बन गया. Similarly, negation of disjunction, negation of P or Q, it becomes negation P and negation Q. Next, negation of negation, double negation, it becomes original statement, statement P. Next, negation of conditional, negation of P implies Q, it becomes P and negation Q. So यहाँ पे देखो P का negation नहीं है लेकिन Q का negation है. So याद रखो कंडीशनल में P and negation Q बन जाएगा. Negation of biconditional, negation of P biconditional Q, it becomes P and negation Q or Q and negation P. तो इस दोनों ब्रैकेट को आपको बाहर करना है. सो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट सेम ही है, जो कंडीशनल का है वही ब्रैकेट यहाँ पे है और दूसरा ब्रैकेट उसके अपोजिट है. तो Q पहले है और P का निगेशन है. सो बाहर दिस टू ब्रैकेट्स. नेक्स्ट, negation of quantified statement. While forming negation of a quantified statement, we replace the word all by some and for every by there exist and vice versa. That means opposite. Next point है converse, inverse and contrapositive. Let PQ be two simple statements, then the converse of P implies Q, which becomes Q implies P. इसका मतलब क्या है, आपका जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है वो आपको कंडीशनल के फॉर्म में होगा. इफ़ पी देन क्यू ऐसे दिया होगा और उसका आपको कॉन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है. तो कॉन्वर्स का फॉर्मूला है क्यू इम्प्लाइज पी, तो उस स्टेटमेंट को हमें क्यू इम्प्लाइज पी में लिखना है. इन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इट बिकम्स निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. तो कॉन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव तीनों में आपका जो क्वेश्चन है वो इफ देन के फॉर्म में होगा, तो उसे हमें इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ सी द एग्जांपल. सो फर्स्ट, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट एग्जांपल, कांचनगंगा इज इन इंडिया एंड एवरेस्ट इज इन नेपाल. So see this example, there are two statements. First is Kanchenjunga is in India and Everest is in Nepal. So this is our second statement. So here connectives is and. So first we separate these two statements. Let's write here statement P and statement Q. Now we have to write here negation of conjunction because here you have to give one connectives and. So we write here negation of P and Q which is equivalent to, we know that negation P or negation Q. So negation, अब हमें इस स्टेटमेंट का एक्चुअल negation जो लिखना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस RHS के फॉर्म में लिखना है. ये क्वेश्चन हमारा कंजंक्शन के फॉर्म में था. सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इट बिकम्स निगेशन P और निगेशन Q. मतलब आपका फाइनल आंसर जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए. तो निगेशन P. So what is our statement P? Kanchenjunga is in India. So negation is Kanchenjunga is not in India. So Kanchenjunga is not in India. Next connectives or. Next negation Q. What is our statement P? Q. Everest is in Nepal. So negation of Q. Everest is not in Nepal. So this is the negation of this compound statement. See the second example. If X belongs to A intersection B and then X belongs to A and X belongs to B. So there are two connectives. First is if then and another is and. So first we use here if then. So if then, so first we write here separate statement. Statement P, X belongs to A intersection B, and statement Q, X belongs to A and X belongs to B. Now if then, here our connectives is if then, that means we have to write here negation of P implies Q which is equivalent to
P and negation Q. We know that the negation of conditional is P and negation Q. That means we have to write this statement as this form. Statement P as it is. So X belongs to A intersection B as it is. This is the symbol of AND. So we write here AND. Now the negation Q. Our statement Q is X belongs to A and X belongs to B. You have to write negation of this statement. So negation of this statement becomes X does not belongs to A and becomes OR, and X belongs to B, X does not belongs to B. So this is the negation of this compound statement. If then था इसलिए P and negation Q करना है, और Q का जो स्टेटमेंट में उसमें फिर से एंड है, तो यहाँ पे एंड का भी और हो गया, और ये बिलोंग्स टू का डज नॉट बिलोंग्स टू बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रायंगल ABC is not equilateral or it is not equiangular. So first we write here, let statement P. Triangle ABC is equilateral. अब यहाँ पे नॉट वर्ड है और है, फिर से नॉट है, तो मैंने दोनों नॉट निकाल दिए और स्टेटमेंट P स्टेटमेंट Q लिख दिया. नाउ द निगेशन ऑफ, अब किसका निगेशन करना है, तो देखो P का भी निगेशन है, सो अगेन निगेशन P, और Q का निगेशन है, सो निगेशन Q. दैट मीन्स निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q. ये निगेशन अगर आप निकाल दोगे तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, और उसका फिर से हमें निगेशन करना है, तो ब्रैकेट के बाहर निगेशन आ जाएगा. अब ये निगेशन दोनों को देंगे, सो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q. सो डबल निगेशन मतलब ये बन जाएगा P एंड डबल निगेशन मतलब ये बन जाएगा Q, P एंड Q. तो हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, P एंड Q. सो द निगेशन इज triangle ABC is equiangular and this is the symbol of and. So and it is equilateral and it is equiangular. ठीक है. अब इसे सॉल्व करने की एक और मेथड है. यहाँ पे नॉट वर्ड एज इट इज़ आप इस स्टेटमेंट में लिखोगे तो भी चलेगा, ये नॉट वर्ड एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, और फिर उसका निगेशन करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा. ठीक है, दोनों टाइप से सॉल्व करके देखो. नेक्स्ट, एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री. सो फर्स्ट वी सेपरेट दिस टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट P, एन एंगल इज अ राइट एंगल, एंड स्टेटमेंट Q, it is of measure 90 degree. So here connective is if and only if, that means this is example of biconditional. So first we write here negation of P biconditional Q, so which is equivalent to P and negation Q or Q and negation P. That means we have to write answer in this form. So first bracket P and negation Q. Statement P, an angle is a right angle and negation Q, it is of measure 90 degree. So it is negation करना है, it is not of measure 90 degree. So first bracket हो गया, यहाँ पे है और, so or Q and negation P, that means Q as it is, तो यहाँ पे it की बजाय आप an angle लिख सकते हो. So an angle is of measure 90 and negation P. So P का negation, it is not a राइट एंगल. ठीक है. सो पहले स्टेटमेंट में एन एंगल था, बाद में इट इज़ था, दूसरे में मैंने यहाँ पे एन एंगल लिखा है, यहाँ पे इट इज़ लिखा है, इतना ही चेंजेस किया है. अगर आप ये नहीं करते हो चेंजेस तो भी चलेगा, बस आपको ये एंड और ये प्रॉपर लिखना है, उसी को इम्पोर्टेंस. सो नेक्स्ट,
for all n belongs to n plus 1 greater than 0. So the negation is, so this is quantified statement for all. So we know that negation of for all is there exist. So there exist n belongs to n such that n plus 1 greater than 0. So its opposite n plus 1 less than or equal to 0. हमेशा याद रखो ग्रेटर देन उसका अपोजिट होगा लेस देन और इक्वल टू. यहाँ पे अगर इक्वल टू दिया है तो यहाँ पे इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे हम सिर्फ लेस देन लिखते. दोनों में से किसी भी एक में हमारा इक्वल टू सिंबल भी आना चाहिए. नेक्स्ट, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज़ नाइट. अब यहाँ पे वर्ड ऑल है, दैट मीन्स क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, तो ऑल का एंड बन जाएगा. और यहाँ पे फिर से इफ है, सो दिस इज ऑल्सो वन कनेक्टिव. इफ देन, दैट मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल. लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कंडीशनल में इफ पहले आता है देन मिडल में आता है. यहाँ पे उल्टा है, इफ मिडल में है, मतलब देन के बाद वाला स्टेटमेंट ये है. मतलब ये स्टेटमेंट आपका पी है तो ये स्टेटमेंट क्यू है. सो इफ के बाद जो आता है वो स्टेटमेंट पी. सो स्टेटमेंट पी इट इज़ नाइट, और ये बाद का स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट क्यू. सो द निगेशन ऑफ P implies Q, which is equal to P and negation Q. So the negation is P as it is night, and negation Q. negation Q में देखो all word है, all becomes sum. quantified statement में all का sum बन जाएगा. So the sum stars are not shining. ठीक है, सम ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, सो द सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. नेक्स्ट, राइट द कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सी द एग्जाम्पल, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार. सो हियर इफ देन इज आवर कनेक्टिव्स, that means these two are the statements. So we write here first statement P, it snows, and statement Q, they do not drive the car. तो यहाँ पे मैंने not भी कंसिडर किया है, तो उसे सेपरेट मत निकालो, एज इट इज़ रखो. कॉन्वर्स Q implies P, हमें पता है कॉन्वर्स में Q implies P आता है. मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है उसे हमें Q implies P में लिखना है. तो हमें Q पता है, P पता है, तो उसे Q implies P में लिखो. सो द Q, they do not drive the car, देन, अब यहाँ पे इफ देन आना चाहिए, तो यहाँ पे इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन पी, इट स्नोज. इनवर्स, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. इफ निगेशन ऑफ पी, पी क्या है, इट स्नोज. सो इफ इट डज नॉट स्नो देन निगेशन क्यू, दे डू नॉट ड्राइव द कार. अब ये ऑलरेडी निगेशन है, तो इसका फिर से निगेशन, मतलब वो स्टेटमेंट बन जाएगा दे ड्राइव द कार. नेक्स्ट, कॉन्ट्रापोजिटिव, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. सो इफ निगेशन क्यू, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो उसका निगेशन बन जाएगा इफ दे ड्राइव द कार देन निगेशन पी, पी है इट स्नोज, सो इसका निगेशन इट डज नॉट स्नो, इट डज नॉट स्नोज. सो दिस इज द कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव. तो यहाँ पे आपको बस याद क्या रखना है, कॉन्वर्स मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू, इनवर्स मीन्स निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव मीन्स निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. तो आपको जो भी एग्जाम्पल दिया होगा उसका यूज़ करके पहले स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट क्यू लिखो, और बाद में कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव आप इजीली लिख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. सो आपको ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, निगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज आ. सो अगेन इसका निगेशन करना है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट लिखा और उसका निगेशन. सो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न, तो यहाँ पे हमें रूल्स यूज़ करने हैं. सो कौन से रूल्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज.
दैट मीन्स कंडीशनल बाय कंडीशनल। तो ये रूल्स हमें यहाँ पे यूज़ करने। तो सबसे पहले अगर ऑब्जर्व करोगे तो निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट है इम्प्लाइज है। तो इम्प्लाइज मतलब कंडीशनल का फॉर्मूला आएगा। कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है? पी एंड निगेशन क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी मीन्स दिस होल टर्म एंड आर क्यू मीन्स आर। सो पी एंड निगेशन क्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड निगेशन क्यू मतलब निगेशन ऑफ आर बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा डिसजंक्शन का, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो निगेशन ऑफ पी और बिकम्स एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ आर, ठीक है। तो ये बन गया इसका निगेशन। नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट पैटर्न को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पे निगेशन लिखा, क्योंकि क्वेश्चन है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट पैटर्न और निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज, सो फर्स्ट सी दिस, देर आर टू ब्रैकेट्स एंड connectives is and, so negation of p and q, this is similar like negation of p and q, so it becomes negation p or negation q. So here it becomes negation of this bracket और negation of second bracket, ऐसा समझ में, इस फॉर्म में मैंने लिखा है इसे। तो फर्स्ट ब्रैकेट मीन्स p, सेकेंड ब्रैकेट मीन्स q। सो निगेशन ऑफ निगेशन p एंड q और निगेशन ऑफ निगेशन q और निगेशन r, ठीक है। सो अगेन निगेशन ऑफ एंड है तो एंड का और बन जाएगा। सो निगेशन ऑफ निगेशन p और निगेशन q, और यहाँ पे फिर से एंड दोनों को देंगे और बिकम्स एंड। सो निगेशन ऑफ निगेशन q एंड निगेशन ऑफ निगेशन r। ने क्या किया? यही रूल्स यूज़ कर रही हो, बस यहाँ पे पी क्यू है और यहाँ पे निगेशन है, तो निगेशन का निगेशन मतलब डबल निगेशन बन जाएगा। अब जहाँ पे डबल निगेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। निगेशन निगेशन पी इट बिकम्स पी और निगेशन क्यू एज इट इज़, और यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन क्यू बिकम्स क्यू and negation of negation r becomes r. So this is the negation of this statement. Now the next, biconditional or negation q implies negation r. So negation of this whole statement, so यहाँ पे दो ब्रैकेट के बीच में और है, so it becomes and. So negation of p biconditional q and negation of negation q implies negation r. Next, negation of biconditional. So we know that negation of biconditional is these two bracket, so p and negation q or q and negation p, and as it is, अब negation of negation q implies r, so formula of conditional p and negation q, so यहाँ पे negation q and negation of negation r, ठीक है। डबल negation q आ गया क्योंकि यहाँ पे p and negation q है, तो इसलिए यहाँ पे डबल negation आ गया। So first bracket as it is p and negation q, second bracket as it is q and negation p, and तो यहाँ पे ब्रैकेट डालती हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि बाहर एंड है, यहाँ पे और है, निगेशन q एंड डबल निगेशन बन जाएगा सिर्फ r, तो ये है इसका निगेशन। थैंक यू।